recording my lecture, and I have to start a lecture as well. I think there is certain trouble with the internet problem. Internet problem हो रही है. खैर, you don't have to waste further time. अगर देखो मैं भी data use कर रहा हूँ because my cable net would not perform working so well. So if you are getting problem right anywhere, so you're gonna have to inform me as quick as you can. सर अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब कोई प्रॉब्लम नहीं. Good. अब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टिल मेरा नेट नहीं चल रहा, तो that's why I'm saying all this thing. So let's get started. We're gonna have to start about our topic. Okay, recording start हुई है. So we're gonna have to start our stuff for today. We are on the topic of liver. We have done with the formation of cholesterol. Formation of cholesterol जिससे हमारा बना था gall bladder stone. Gall bladder stone के लिए कितने factors थे class? What are the factors which can form in the gall bladder stone? 4 factors, and what are they? What are they? 4 factors. What are those? Female at the 40 fair and fat. Okay, female at the age of 40 having the fair fat. That is somewhat a thing we can see about for a condition. We have to see this, that certain sort of thing we have been reported on the formation of gallbladder stone. Okay, so yes class, if the patient of gallbladder of the victim of a removal of a gallbladder, मतलब अगर वो patient जिसको gallbladder stone हुआ, उसका gallbladder remove हुआ, and now he or she become stable. She become stable now. सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है. सर आवाज लैग कर रही है. बहुत लैग कर रही है, अभी भी लैग कर रही है, और मेरा कनेक्शन मुझे बता रहा है that it is unstable. मेरा कनेक्शन मुझे क्यों बता रहा है अनस्टेबल? तुम लोगों का कनेक्शन सही है? हाँ, अभी मेरे पास भी ऑप्शन. आप सही है? आप सही आवाज आ रही है? यस सर, आप क्लियर है. ठीक है, जहाँ पे भी लैगिंग है मुझे रोक देना वहाँ पे कि सर अब अभी लैगिंग हो रही है, अभी रुक जाए थोड़ा, फिर मैं देखूंगा थोड़ा सा रुक के फिर बोलूंगा तो हो सकता है आ जाए आवाज. अच्छा, आई एम कमिंग ऑन टू माय टॉपिक. द पेशेंट इन द गॉल ब्लैडर वुड बी रिमूव ड्यू टू द स्टोन फॉर्मेशन. दैट पेशेंट सफर्स फ्रॉम व्हाट? तो पेशेंट किससे सफर करता है? क्या उसका बीपी बढ़ जाता है? क्या उसको शुगर हो जाती है? डायरिया. रूज, तुम्हारी आवाज बहुत लैग कर रही है, मेरी तक बहुत पहुंचने में बहुत ज्यादा लैगिंग हो रही है. तो इफ यू कैन यूज द चैट बॉक्स, और मैं तुम्हारी वॉइस से इंडिकेशन हुई है कि डायरिया से सफर करता है. डायरिया. हाँ, ओके, डायरिया. आई एम जस्ट मेकिंग अबाउट ओवर हियर अ वर्ड दैट इज डिस्पेप्सिया. तो मैं यहाँ पे वर्ड डायरिया. ओके, इट्स नॉट अ स्पेलिंग ऑफ डायरिया. रूज, यू कैन हैव टू चेक योर स्पेलिंग चेक कर लेना. ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में डिस्पेप्सिया ज्यादा होता है. डायरिया से ज्यादा डिस्पेप्सिया को याद रखना. दैट्स व्हाट यू कॉल द एसिडिटी. दैट व्हाट यू कैन से द अल्सरेशन कंडीशन जो होती है ना, या एसिडिटी जिस कंडीशंस को आप कह रहे होते हो, तो वो कंडीशन ज्यादा होती है. एसिड लेवल बढ़ता है. क्यों? क्योंकि द थिंग व्हिच हैव टू रिड्यूस द एसिड, that is bile, it cannot be stored into the sufficient quantity. That's somewhat the reason. Okay, now class, if I am asking towards the very next thing about for liver, तो हमारे पास next topic आ रहा है जो था that is what thermoregulation. So with my next question which I'm gonna have to put forward over here, I don't know about what would be the point we are talking about, 4th, 6th, 7th. We have to talk about a thing that's called what? That's called thermoregulation. So what do we mean about for that term class? Thermoregulation. Yes class. Sir, Maintenance of heat. Maintenance of, how does it is the maintaining of internal body heat. लेकिन बेटा what am I saying over here कि how does the liver thermoregulate itself? How does it thermoregulate? liver कैसे thermoregulation में अपना role play करता है? How does liver play its role in performing thermoregulation? Sir, through blood supply. Through a certain huge amount of blood supply, as you can see it over here. मैं अब एक short acting diagram form करता हूँ class. That's you know about for our alimentary canal and that sort of stuff. We have large intestine, we have the small intestine over here. Okay, so we know very well that when the assimilation, you know all what is assimilation? The assimilation जब होती है, so class we can see that's somewhat our liver. हमारा पूरा liver है. So we can see that from the small intestine, the blood would be in a small intestine, the food would be absorbed into the bloodstream. From a small intestine, the food goes where? The food would be absorbed into the bloodstream, and after that, this food
would be taken to where? This food would be taken fast to liver. So class, there is a huge amount of blood supply. There is a huge amount of blood supply goes towards the liver. कि जैसे small intestine में हमारे पास तीन चीजें होती है ना, absorption, sorry, what we can say about for small intestine में हमारे पास digestion होता है, फिर absorption होती है. Absorption, the food, digested food would be absorbed into the blood, and after this blood would transfer first to where? It transfer to the metabolic factory. That is called what? That's called liver. So first thing you're gonna have to get on your mind, okay, there is a huge amount of blood supply occur through the liver in performing what? In performing the assimilation. So thermoregulation कैसे हो रहा है? Due to assimilation. Class remember it. Due to what? Due to assimilation. And now what is that assimilation? Assimilation क्या है? The transfer of digested food through the bloodstream towards the liver. So due to assimilation, liver gets enormous blood supply. Enormous blood supply from where? Enormous blood supply from small intestine. So class, that is somewhat the reason that due to the high amount of blood supply goes on to the liver, the patient is getting, the liver is performing what? The liver is performing thermoregulation. And yes, we know very well that if the liver would be infected, the patient getting a certainly the high fever, at that time the fever cannot be regulated. तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे पास condition बहुत ज़्यादा worse होती है, when the patient liver would get infected. तो उस वक्त liver infected है, लाजमी सी बात है, infected है तो वो ना तो वो metabolism से ही करेगा, ना deamination से ही करेगा. Just for example, if my this hand would be infected, खुदा ना खासा अगर ये मेरा हाथ infected होता है, can I write properly? क्या मैं लिख सकूंगा properly? जल्दी बोलते जाओ. No sir. क्या मैं खा सकूंगा properly इससे? No sir. क्या मैं कोई चीज होल्ड कर सकूंगा प्रॉपर्ली? मतलब अगर ये चीज इन्फेक्टेड है तो मैं इससे जो काम कर सकता था वो मैं काम नहीं कर सकूंगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर लिवर, लिवर इज रिस्पांसिबल फॉर एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन. लड़की मैंने बोला थोड़ा सा छोटे उसमें लिख दूं स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा. तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट अ पार्ट कि अगर liver infected होता है, so it does not perform only the metabolism, it cannot only perform the deamination, cannot perform the detoxification, cannot store the vitamins, it cannot also perform the thermoregulation. So why, if the patient liver would get infected, the body is facing a certain condition. कंडीशन क्या होती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, when you are in a condition of fever और उस वक्त आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो क्या करता है? पहली चीज क्या करता है? पहली दो तीन चीजें जो वो करता है वो क्या करता है? थर्मामीटर लगाता है, थर्मल स्ट्रिप लगाता है, थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करता है. तो बहुत सारे कंडीशन है थर्मल वो आपका टेम्परेचर नोट करने के लिए. उसके बाद टेम्परेचर चेक हो गया अरूज, उसके बाद क्या करेगा? फिर उसके बाद क्या करता फिजिशियन? फिदा कोई मसला नहीं. आज हमने एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म को रखा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए. होप कि वो अच्छा रिकॉर्ड करे, मसला नहीं है. रिकॉर्ड लेक्चर आज मिलेगा इंशाल्लाह आगे से ही. अच्छा फिदा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं एक अपना पार्ट. सर उरूज फातिमा, यू आर सेइंग कि टेम्परेचर चेक, देन थ्रोट चेक, देन हार्ट बीट. क्या उरूज, व्हाट डू यू थिंक कि आइदर द फिजिशियन कैन चेक द आईज? क्या वो आंखें चेक करता है? आंखों थोड़ा सा नीचे करके देखता है, right in the way like that, थोड़ा सा आंख नीचे करके देखता है. Isn't it? Isn't it? क्यों भाई, क्या देखता है वो आंखों में? और थ्रोट वगैरह बाद में पहले टेम्परेचर चेक करके आपकी आंख, पहले आप जाओगे बुखार हो रहा होगा, आपकी आंखें नीचे क्यों करके देखेगा? टेम्परेचर चेक करने से भी पहले. कलर, सो वो व्हाइट हो रही है या रेड हो रही है ये चेक करता है. रेड हो रही है, व्हाइट हो रही है या येलो हो रही है? सर वही थोड़ा येलोइश कलर मिलता जुलता. If the patient eye, the whitish part, what you can say, of eye, it turns to yellow, so it's an indication that your liver would get infected. Hepatitis का patient, hepatitis B और C का patient, उसकी आंखें देखना, मतलब अगर तुम लोग का ऑब्जर्व हो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में, तो उसकी आंख जो हो रही होती है वो बिल्कुल क्या हो रही होती है? पेल येलो हो रही होती है. बिल्कुल आंखें उसकी येलो हो रही होती हैं. तो that's a certain indication कि that patient suffering from the infection of the liver. वो आपकी आंख इसीलिए चेक करेगा कि भाई वो देखना चाहता है कि either your liver performing working well or not. बुखार है, बुखार में लाजमी सी बात है लिवर भी इन्फेक्टेड होता है. आपकी आंखें चेक क्यों करता है? वो देखने के लिए कि भाई मेटाबॉलिज्म का निजाम तो सही है ना या नहीं है. ठीक है, तो
जॉन्डिस में भी, बिल्कुल जॉन्डिस में भी होती है। जॉन्डिस है क्या? जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ये चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में तुम लोगों ने सारे डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। of हाँ, इन्फ्लेमेशन। आइटिस का वर्ड कहीं पे भी इट मेंट टू बी फॉर इन्फेक्शन, जिस तरह आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, लेरिंजाइटिस, so that's all certain sort of a word. Itis मतलब inflammation, hepatitis, hepatitis, liver, itis inflammation, hepatitis, liver inflammation, liver infection. So that's all sort of the stuff you're gonna have to remember. So class, अब मैं इसको थोड़ा सा overview करूँ, फिजा listen to me very carefully regarding कि liver perform करता है thermoregulation. Thermoregulation क्या होता है कि the maintaining of internal body temperature. How does liver play its role in performing thermoregulation? Reason बन सकता है तुम लोगों के पास, रीजन बन सकता है कि हाउ डज लिवर परफॉर्मिंग थर्मोरेगुलेशन, कोई भी बन सकता है। हाउ लिवर परफॉर्मिंग डिटॉक्सिफिकेशन, हाउ लिवर परफॉर्मिंग डीअमाइनेशन. सो दैट्स ऑल सॉर्ट ऑफ द थिंग यू कैन मेक द चैलेंज ओवर हियर कि हाउ डज लिवर परफॉर्मिंग थर्मोरेगुलेशन. एज वी नो कि फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन the food at last it would be absorbed into the blood, and after that the blood transfer these food first to where? First to the metabolic factory. That's called what? That's called liver. So the liver gets enormous amount of blood supply from the small intestine, and in order to manage the blood supply, the huge amount of blood supply, so liver also do what? Liver also performing the thermoregulation. As we know that the blood is certainly warm in nature, it is being continuous in flow, it having a certain high amount of kinetic energy to class. The blood having certainly warm in nature and they are flow continuously towards the liver. So liver also having a role to manage the blood supply. It also performing the thermoregulation. So that's somewhat we are the second last topic regarding about for thermoregulation. And now next what we're gonna have to start about a part. The next thing which we're gonna have to start about a part, that is I think that is storage of vitamin. क्या मैंने discuss किया था storage of vitamin? या यहाँ तक कोई मसला? अगर यहाँ तक कोई question है तो you can ask me. Assimilation, what is that? Assimilation क्या होता है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Assimilation would be done by means of a small intestine. It would be done by the blood vessel. The process in which the blood transport digested food. Process in which blood transport digested food. वो process जिसमें blood digested food को transport करे, that is called what? Assimilation. The process in which blood transport the digested food, that process is called what? That process is called thermoregulation. Would you remember that point, class? और कोई मसला इस टॉपिक के हवाले से? हाँ बोलो सर। अगर लिवर को हाई सप्लाई ऑफ ब्लड हो भी रहा है तो मतलब ब्लड के मतलब गर्म होने की वजह से लिवर भी गर्म हो रहा है, तो वो उसको थर्मोरेगुलेट कैसे कर रहा है? ब्लड गर्म नहीं हो रहा, इट मैनेजेस द सप्लाई ऑफ ब्लड. It manages the supply of blood, which means what? Which means that the body internal temperature would be balanced by means of what? Liver. Thermoregulation का मतलब क्या हुआ बेटा? Thermoregulation का मतलब हुआ maintaining the temperature. Maintaining the temperature, liver के पास enormous amount of blood supply आ रहा है. So liver do what? It manages the supply of blood. So class, it manages the supply of blood. It manages what? It manages the heat. Liver क्या कर रहा है? जो भी enormous amount of blood supply आ रहा है, उसको वो manage कर रहा है. It manage that how much amount they're gonna have to be absorbed and how much amount they're gonna have to be transport to the rest part of the body. ठीक है, तो पहले फूड कहाँ पे आ रहा है? लिवर के पास आ रहा है. डाइजेस्टेड फूड पहले कहाँ पे आ रहा है? लिवर के पास आ रहा है. उसको ट्रांसपोर्ट किसको करना है? लिवर को ट्रांसपोर्ट करना है कि किडनी गेट्स दिस अमाउंट ऑफ certain product, lungs get this amount of certain food, brain get this amount of certain food. तो इस तरह ब्लड सप्लाई क्या हो रही होती है? मैनेज हो रही होती है. एंड ब्लड कंटेन द हीट इनसाइड इट एंड दैट हीट वुड आल्सो बी मैनेजेस बाय मींस ऑफ व्हाट? लिवर. सो इन दिस वे लिवर परफॉर्मिंग व्हाट? थर्मोरेगुलेशन. और कोई मसला बेटा? ये बात समझ में आई जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की? और कोई मसला किसी को? नो सर। यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज साइज थर्मोरेगुलेशन के उसमें, तो लार्ज साइज से होने का क्या मतलब हुआ इससे? नहीं, थोड़ा पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है. आई डोंट हैव बुक राइट नाउ. Due to its efficient blood supply, large size and high metabolic rate, liver plays important role in maintaining body temperature. Due to large size and high metabolic rate means the size of the liver. यहाँ पे छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर इसको डायग्राम्स वगैरह में देखते हो, so it can occupy this space. The size of the liver would be large and it can store the largest what you can say the large skin would be the largest organ, and after that we have the liver. Now, so large liver is certainly the large in nature and it having a high metabolic rate.
तो it can receive the enormous amount of blood within it. ठीक है, it receive the enormous amount of blood within it. That's why they are saying कि ये enormous amount of blood absorb कर सकता है, enormous amount of blood intake करता है. That is somewhat the reason they can performing what? They can performing the thermoregulation and it having a high metabolic rate. Last वीक की बात है, metabolic fatty कहला रहा है. और उसके बाद यही पार्ट क्या करता है, different metabolites जो हमारे metabolic products होते हैं, वो respected part of the body तक transport करता है. It is being large in nature, it having a high metabolic rate. That's why it performing it. That's why it absorb the large amount of water and metabolite the large amount of that's why they absorb the large amount of blood. Voice lag कर रही है, फिजा को voice lag कर रही है. उरूज, कस्मा, you gonna have to tell me. मेरे पास जितने भी बच्चे हैं बेटा, क्या voice lag कर रही है? No, फिजा, No, sir. फिजा, फायदा, would you get my voice clear now? Inform me on the chat box. फिजा सलीम, would you get my voice clear now? आप voice clear हुई? जी आप क्लियर. ओके, तो दैट इज सर्टेनली अ रीजन कि हम कहाँ पे थे. हमने ये बात की, जिस तरह मुझे बात पढ़ के बताई है कि सर लिवर का जो डाया होता है, लिवर का जो साइज होता है वो बड़ा होता है. सो द enormous size of the liver do what? My internet connection is unstable. Would you get in my voice clear? मुझे एक टॉपिक वो एक नोट लिखा हुआ है. Yes, sir. Okay, so due to the large size of liver, it can receive the large amount of blood, and receiving the large amount of blood means receiving the large amount of heat. And yes, that is the liver which can manages the supply of blood after that. So class, in this way they are performing what? They are performing thermoregulation. और कोई मसला आगे के पॉइंट से या इस पॉइंट से? Yes, class. No, sir. Okay, so what we have the next topic? Next topic क्या हमारे पास? Storage of vitamins. Storage now- of vitamins. Now, what are vitamins actually? By the way, vitamins क्या होते हैं? क्या होने चाहिए? Any idea about for vitamins? Vital minerals. Okay, vital minerals. So, what does that vital minerals do in our body? Either the body produce it, either okay. अच्छा, जरा सा hold on करो. मेरा जो recording material है वो बंद हो चुका है. हम बात कर लेते हैं vitamins के हवाले से shortly थोड़ा बहुत. तो nobody doesn't okay, sorry, nobody doesn't. Okay, yes, the body does not make the vitamins. It acting as a macronutrient or it acting as a micronutrient? क्या करता है ये? Micronutrient होता है या macronutrient होता है? Sir, macro. Micronutrient. And what are the Micronutrient. macronutrient? Macro क्या होता है फिर? Sir, large. वो Large. large amount में चाहिए होता है. जैसे कि सर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि लिपिड, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड. दे आर द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक्टिंग एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बात डाइवर्स करूं तुम लोगों को, मैक्रोन्यूट्रिएंट in which we gonna have to include about a part, that is what? That is protein, that is carbohydrate, that is lipid, that is nucleic acid. That's all sort of stuff which we gonna have to include in macronutrient. ये stuff मैं include करूंगा किसमें? Macronutrient में. What are they? They are protein, they are carbohydrate, they are nucleic acid. तो मुझे इनमें से बताओ सबसे ज्यादा complex कौन सा है? क्या जानते हो? क्या तुम लोगों की thinking कहती है? Out of these protein, carbohydrate, lipid and nucleic acid, which acting as a complex biological molecule? Yes, class. Which acting as complex biological molecule? I want this answer from each and everybody. Complex biological molecule इनमें से कौन सा है? Protein, carbohydrate, lipid or nucleic acid? Yes, class. Well, I have to come on to the chat box and just inform me what you know about for that. So Uruj giving me the answer about for protein. Kasma, nucleic acid. उरूज ने तो फिर अपना आंसर प्रोटीन को ही रखा. और यस, न्यूक्लिक एसिड. हफ्सा, यू आर सेइंग अबाउट फॉर न्यूक्लिक एसिड. व्हाट एल्स? यस फाइजा, यस. हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वी हैव ओवर हियर? आज मैं पार्टिसिपेंट्स को भी नजर डालूं. और सबसे जोहा, न्यूक्लिक एसिड. ओके, हदीका, व्हाट्स योर आंसर? सना, व्हाट्स योर आंसर? हफ्सा ने आंसर दे दिया अपना. तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी जरा सा देखता जाऊं और पार्टिसिपेंट्स भी देखूं कौन कौन है. यस फिजा,
nucleic acid. Yes, Adika, what's your answer? Zamira, Zoha ने आंसर दे दिया न्यूक्लिक एसिड. अच्छा Zamira, you are saying about for lipids. आवाज select कर रही है तुम्हारी, चैट बॉक्स से बोलो मुझे. अमाइनो एसिड तो है ही नहीं उरूज, which is a complex biological molecule. जमीरा ने आंसर दे दिया, सॉरी जमीरा, ठीक है तो मैं आंसर दे दिया. एंड व्हाट्स बीइंग सर, आई थिंक कार्बोहाइड्रेट. नहीं भाई, द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज प्रोटीन. So those who are going with the nucleic acid, those who are going with the lipid, those who are going with the carbohydrate, they are being wrong. And those who are going with the protein, they are being right. ये चीज याद रखना. और ये चीज मैं कैसे प्रूफ करूंगा, इसको प्रूफ भी करेंगे हम. कैसे प्रूफ करेंगे ये हम आगे जाके देखेंगे. ओके, सो यस, वी कैन हैव टू स्टार्ट अबाउट फॉर vital minerals. Vital minerals को हम देखते हैं आगे. What are the things we can have to see about over here? Liver responsible for the storage of vitamins. Liver is responsible for what? For the storage of vitamins, vital minerals. It's a micronutrient. It does not produce by the body. The body have to consume it from the nutrition. Body consume करती है इसको nutrition से. Okay, जी body इसको consume करती है nutrition से. तो class, there are certainly the two types of vitamins. Some vitamins do what? मैं अभी थोड़ी बहुत बातें करूँ. It acting as a bridge. What is it acting as? It acting as a bridge. It absorb minerals into the body. ये minerals को body में absorb कराएगा. जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं विटामिन डी के हवाले से, तो दैट विटामिन डी डू एक्टिंग एज व्हाट? ये विटामिन डी क्या है? विटामिन डी एक्टिंग एज अ ब्रिज. इट एब्जॉर्ब कैल्शियम. इट डू व्हाट? इट एब्जॉर्ब कैल्शियम. कैल्शियम टू वेयर? इट एब्जॉर्ब कैल्शियम इनटू द बोन्स. बोन्स में कैल्शियम ऐसे ही नहीं आ जाती. बोन्स में कैल्शियम आती है by means of what? By means of vitamin D. तो ये चीज याद रखिएगा. Calcium cannot comes into the bones. The calcium comes into the bones by means of what? By means of vitamin D. And if I am talking about for liver, liver store the two types of vitamin. And what are they? Liver store the two types of vitamin. And what are they? They are one is water soluble vitamin. Liver इसको store नहीं करता. And another one is fat soluble vitamin. Liver उसको store करता है. What is soluble vitamin? It does not store by the liver, but the liver store what? The liver store the fat soluble vitamin. अब ये होते कौन-कौन से विटामिन है? फैट soluble में कौन से विटामिन होते हैं, कौन से विटामिन नहीं होते? Either we discuss vitamin previously. क्या हमने विटामिन को previously discuss किया है? जी सर, थोड़ी सी बात की थी हमने विटामिन पे. बताया था. क्या बताया था? ब्रीफली बताया था, थोड़ा सा टॉपिक के स्टार्ट से पहले. टॉपिक के स्टार्ट से पहले मतलब डिटेल नहीं गए हम कभी भी. हमने कोई डिसऑर्डर्स का स्टडी नहीं किया. नो सर. कोई मैंने इसका पार्ट चैप्टर तुम लोगों के फर्स्ट ईयर से लिंक अप नहीं किया. Isn't it? Yes. Isn't it? Yes, sir. Okay. आओ करते हैं फिर. तो if I'm talking about for water soluble vitamin, ये तो लिवर एब्जॉर्ब नहीं करता. लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करता, हम अपनी बात को सिर्फ लिवर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. हम थोड़ी सी अपनी बात को आगे भी प्रोसीड करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स अच्छे हों. और मैं तुम लोगों को, क्योंकि ये विटामिन्स का रोल हम अपने आखिरी चैप्टर्स में भी देखेंगे, तो वी कैन हैव टू रिमेंबर व्हाट आर सॉर्ट ऑफ विटामिन्स हियर. So if I'm talking about a part for water soluble vitamins, so remember that in water soluble vitamin we have vitamin B and vitamin C. We have the two types of vitamin, vitamin B and vitamin C. That's the two sort of vitamins we have. And if I'm talking about for the fat soluble vitamin, we have the certainly the following types: vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. तो अगर बात की जाए vitamin B and C, there are only two types of vitamin which we are including in vitamin water soluble vitamin, that is vitamin B and vitamin C. अगर विटामिन बी के हवाले से बात की जाए, इट इज नॉट ओनली वन विटामिन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन व्हिच इज बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम विटामिन B1 टिल B13. B1 से ये B13 तक जाता है. डी सीरीज की हमारे पास 3 टाइप्स होती है, D1 से लेके D3 तक. AVF ऑफ 2 टाइप, A1, A2. खैर ये मैं तुम लोगों को टाइप्स बता दी, इसको इतना ज्यादा डिटेल नहीं कर देंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए. Would you get my voice clear? क्लास का मेरी वॉइस सर बीच में थोड़ी सी आपकी आवाज रुक गई थी, तो ये दोबारा बता दें. मुझे 1 और 13 बताया. करने दो लैग.
पुअर कनेक्शन है तभी लैग कर रही है ना, लेकिन रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड के लिए एक एक्सटर्नल एपरेटस भी आज लगाया हमने। खैर देखते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग इट कम्स। तो हम बात कर रहे थे, दोबारा से बोल देते हैं बेटा, कोई मसला नहीं। तो वी हैव द टू टाइप्स ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन इन विच वी हैव विटामिन बी एंड सी। बी एक विटामिन नहीं है, ये इट वुड बी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन व्हिच इज बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम B1 से B13, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सी it would be, I'm just letting it only one over here. A दो टाइप्स के होते हैं, A1 और A2. D are of three types, D1, D2, D3 और E and K. There are the certainly A, D, E, K. They are the fat soluble vitamin. B and C, they are the water soluble vitamin. अब अगर तुम लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहते हो, so I gonna have to link this topic. मैं इस टॉपिक को अगर लिंक अप करता हूँ तुम लोगों के चैप्टर नंबर 13. Would you have all of you have book yet right now? क्या तुम सबके पास बुक है अभी? क्या तुम लोग सब अभी बुक रख के बैठे हो? ओके, तो जस्ट ओपन द लास्ट पेज ऑफ योर बुक, नॉट ओपन द लास्ट पेज ऑफ योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले जो चैप्टर 13 के जो लास्ट पेजेस हैं उनको अगर आप लोग ओपन अप करके देख सकते हो तो देखो। यस सर, देखिए। ओके, सो देयर आर द न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर, these are the diseases। हमारे पास वहां पे डिजीजेस हैं और डिजीजेस में हमारे पास विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी हैं। अगर तुम लोग को देखे तो न्यूट्रिशनल डिजीजेस में ना, बिल्कुल ठीक। जस्ट विटामिन ए की ये डिजीजेस है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, isn't it? तो है बिल्कुल मिला सबको। पेज नंबर अगर यहाँ पे डिस्क्लोज करो मुझे तो मैं यहाँ पे सबको पेज नंबर बताऊं। क्या पेज नंबर है भाई? 293 पेज नंबर है हमारा। तो ये आप लोग देखते जाओ, 293 हमारा पेज नंबर है। सेकेंड ईयर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट टॉपिक है, दैट इज द इन्फेक्शियस एंड न्यूट्रिटिव डिजीजेस। तो यहाँ पे हम न्यूट्रिटिव डिजीज देख रहे हैं, व्हिच वुड बी द डिजीज फॉलोड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। सो क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो वी हैव द सर्टेन टाइप ऑफ विटामिन। अगर मैं विटामिन ए के हवाले से बात करता हूँ, अगर विटामिन ए की कमी होती है बॉडी में, होता है नाइट ब्लाइंडनेस। isn't it written over there? क्या लिखा हुआ है? यस सर। ओके, बिल्कुल लिखा हुआ होगा। और नाइट ब्लाइंडनेस व्हाट डज इट मीन फॉर नाइट ब्लाइंडनेस? रात को नहीं दिखेगा? Yes, sir. The patient cannot see the certain things clear onto the night. Okay, so that's somewhat the deficiency come by the vitamin A. If I'm talking about vitamin B, what is that? Berry, isn't it? Berry, what is that? Deficiency of immune deficiency, that is called berry. अगर लिखना चाहो तो वहां पे लिखते भी जाओ, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं होगा मेरे ख्याल से, isn't it? यस सर। तो वहां पे लिखते भी जाओ बेरी आई डोंट थिंक सो। तो बेरी विटामिन बी की कमी होगी तो पेशेंट हैविंग अ सर्टेन डेफिशिएंट इन इम्यून सिस्टम। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम अक्सर देते हैं कि जब पेशेंट अपना रिकवर होता है फीवर से, जब वो हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक लेके उठता है, जिस तरह अभी कोविड-19 के पेशेंट्स होते थे हमारे पास, तो हम उसको क्या देते थे? एजोमैक्स देते थे, एजिथ्रोमाइसिन देते थे। तो वी आर गिविंग द हाई डोज ऑफ द एंटीबायोटिक। तो उन पेशेंट्स का जो इम्यून तो उनका वैसे ही बहुत ज्यादा वीक हो जाता था उस वक्त। और देयर आर सर्टेन प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स वुड बी डेड। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया होते थे वो भी डेड हो जाते थे उन एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो उन पेशेंट्स को हम बी कॉम्प्लेक्सेस देते थे ताकि वो अपने आप को जल्दी रिकवर कर सके, क्योंकि आफ्टर फीवर जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा वीक कर देती है बॉडी को। फीवर में तो बॉडी लाजमी सी बात है वीक होती ही होती है, लेकिन फीवर की जो बाद की भी कंडीशन है ना, जिसमें बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है, तो वो कंडीशन बहुत ज्यादा ट्रबल मेकिंग होती है। सो इन दैट केस वी गोना हैव टू गिव द विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस भी देते हैं और मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी गोना हैव टू गिव। अच्छा, नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पार्ट विटामिन सी डेफिशिएंसी। द सी डेफिशिएंसी कॉजेस व्हाट? स्कर्वी, isn't it? Scurvy, that is the bleeding gum disorder. The gums start to bleed. Parodontax का देखा है? जी सर। Parodontax, अगर आपके मसोड़ों से खून आ रहा है तो you have a deficiency of what? Vitamin C. अगर मसोड़ों से खून आ रहा है, मसोड़ों में सूजन है, so that's all come for what? That's all come for the deficiency of what? Vitamin C. So vitamin C से नहीं होता, poor brushing habit से भी होता है। Okay. That's somewhat for scurvy के आगे लिख सकते हो bleeding gums। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? विटामिन डी deficiency can produces a certain condition that is called rickets में होता क्या है कि पेशेंट में swollen limbs हो जाते हैं, बोन्स उनकी स्वेल कर जाती है,
जिस तरह हमारी लिम्स जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी पेशेंट्स में जो बोन्स होती हैं इन्फेंट्स की, मैं ज्यादातर ये इन्फेंट्स के बारे में इन्फेंट्स के बारे में मैं टारगेट करता हूं, तो इन्फेंट्स में बोन्स क्या हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, कर्व हो जाती हैं। जिस तरह हाइंड लिम जो निचला हिस्सा है, जो नीचे की बोन्स हैं, दे आर बीइंग स्ट्रेट, इफ दे आर बीइंग कर्व, अभी हमारी बोन्स स्ट्रेट है, वी कैन मूव स्ट्रेट, वी कैन पोस्चर एज अ स्ट्रेट। तो अगर ये बोन्स कर्व हो जाए, वुड यू थिंक कि हमारी बॉडी स्टैंड कर सकेगी? सर प्रॉपर्ली नहीं करेगी कर सकेंगे। अच्छा, आई हैव गॉटन अ सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम हफ्सा, पहले मैं उसको जरा सा देख लूं। सर मेरा भी क्वेश्चन है इसके बाद। अच्छा, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी देख लेते हैं पहले। हफ्सा का एक सवाल है, सर मैंने एक पेशेंट को देखा था जिसने यही मेडिसिन ली थी। हफ्सा क्या मेडिसिन ली थी? और उसको आपके साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि उसको भूख नहीं लग रही, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले तो मुझे बताओ कौन सी मेडिसिन ली थी, बी कॉम्प्लेक्स ली थी तो भूख नहीं लग रही है, या एंटीबायोटिक्स ली थी तो भूख नहीं लग रही है? कम ऑन टू द चैट बॉक्स या कम ऑन टू द माइक, व्हाटएवर सर सूट्स वो यू। एंटीबायोटिक्स थी, एजोमैक्स ट्रेजो, जिसका फार्मूला सेम है एजिथ्रोमाइसिन, जो एजिथ्रोमाइसिन, कोरोना के पेशेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो ली थी तो अब उसको भूख नहीं लगी। रिकमेंड देम अ डोज ऑफ मल्टीविटामिन, या तो वो मल्टीविटामिन लें या फिर बी कॉम्प्लेक्स लें, सर्बेक्स जी मल्टीविटामिन है, सर्बेक्स टी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये लें ताकि अपनी भूख खोलें, या फिर फॉलिक एसिड लें, दैट ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ इट वुड बी रिक्वायर्ड। तो वो जो फिजिशियन जिनसे उनका अगर चल रहा है, क्योंकि आई नॉट नो अबाउट फॉर द केस हिस्ट्री, तो अगर वो हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं, सो नो मैटर अबाउट फॉर दैट। लेकिन बी कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास सर्बेक्स टी अच्छी है, और मल्टीविटामिन में हमारे पास सर्बेक्स जी है, और सो बहुत सारी उसमें ब्रांड्स आ जाते हैं हमारे पास, तो उनसे भूख काफी अच्छी रिवाइटल है, भूख खोलती है। ये मल्टीविटामिन क्या करती हैं, भूख खोलती हैं। तो यस, ये जो रिकवरी कंडीशंस होती है, ये पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल। भाई फीवर से तो उठ गया बंदा, अब वो जो वीकनेस होती है ना, जो अंदर बंदे को बिल्कुल निढाल कर देती है, जिसमें ना तो उसको भूख लगती है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पहनना अच्छा लगता है, ना कहीं जाना अच्छा लगता है, सुस्ती हो रही होती है, दैट्स ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ वुड बी गेट बाय टेकिंग द मल्टीविटामिन। मैं देखता हूं मेरे पास कोई मल्टीविटामिन, हाँ दैट इज नहीं, ये तो मैराथन है, नहीं, आई डोंट